Hello, good morning everyone. Today I'm going to continue the same chapter, that's the 12th sexual reproduction in flowering plants. So I recall I had explained till here that can you think of how capital cells could be combined. So as you know, by the cytokinesis or sometimes you will find out by multiple cell fusions of unicellular cells they are going to become the combined. And next line you will paragraphs you will find out when the anther is young, a group of compactly arranged. मतलब they are very compact structures are they are actually made up of the homogeneous cells, and these cells are going to develop the sporogenous tissues और इनका जो पोजीशन है occupies the just you can see they occupies the center of each microsporidium. ये important है इनका लोकेशन कहाँ पे है तो I am going to show you in the diagram. So just you might have seen in this these sporogenous here I am going to list sporogenous tissues ये है and they are going to be in the center occupies the middle portion of center ठीक है तो you are familiar with this. After that you will find out there is some the small subtopic is microsporogenesis. So what do you understand by the term genesis? Have you heard in biology the word genesis means origin? I'm going to write in this the text genesis. Genesis means origin. Okay, so this is often used as the suffix, as you know, like after the adding the at the end of any word. So like it may be like sporogenesis, maybe sorry microsporogenesis, or maybe like parthenogenesis. You might have heard about the mega sporogenesis. तो ये जो terms आ रहे हैं जो जिनमें genesis word है इसका मतलब origin. So how what does it mean? इसका मतलब ये हुआ कि microspores या pollen grains कैसे बनते हैं, ठीक है? तो इसके बारे में they have just mentioned in successive lines. तो देखिए यहाँ पे as the anther develops the cells of sporogenous tissue undergo meiotic division. तो anther जब develop कर रहा है sporogenous tissues are going किस फेज से जा रहे हैं? They are going to pass through the meiotic division. तो as you know division आपने दो तरह के पढ़ रखे हैं cell divisions, mitosis and meiosis. तो mitosis में क्या होता है? Two cells are formed but they retain the chromosome number same. मतलब अगर जो सेल डिवाइड हो रही है वो डिप्लॉयड है तो जो सेल्स बनेंगी तो वो भी डिप्लॉयड होंगी. अगर मियोटिक डिवीजन होता है तो उसमें क्या होता है, और मियोटिक डिवीजन का दूसरा नाम आपको पता है रिडक्शन डिवीजन. तो उसमें क्या होगा, एक सेल डिवाइड करेगी तो 4 सेल्स बनेंगी बट देयर क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ, उनका नंबर हाफ हो जाता है. तो यहाँ पे बिकॉज ये मियोटिक या रिडक्शन डिवीजन है तो इसकी वजह से 4 सेल्स बन रही है, दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू डेवलप द 4 टेट्राड्स. एंड इनका प्लॉइडी पूछा है. प्लॉइडी क्या होता है बेटा? प्लॉइडी आपको पता होगा जैसे एन फॉर हैप्लॉइड, टू फॉर डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, ठीक है. तो इस तरीके से इसमें पूछ रखा है कि अब प्लॉइडी बताइए अब टेट्राड का, क्योंकि तो यहाँ से क्लू भी दे रखा है इन्होंने. देखो अगर मियोटिक डिवीजन है या रिडक्शन डिवीजन है तो जाहिर है क्रोमोसोम नंबर इज गोइंग टू रिड्यूस टू हाफ. ये क्रोमोसोम नंबर इनका हाफ हो जाएगा, ठीक है. तो ये नंबर इनका एन, यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं दिस नंबर इज गोइंग टू बी एन. टेट्राड का जो प्लॉइडी होगा एन या हैप्लॉइड आप कह सकते हैं, ठीक है. राइट. आफ्टर दैट जस्ट show to the next paragraph. As each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad, ठीक है. Each one is a potential pollen or microspore mother cell. ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है और मैं जैसे अक्सर बच्चों से कहता हूँ कि भाई PYQs तो सारे बच्चे करते हैं, PYQs, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. और यू माइट हैव जस्ट हर्ड दैट ज़्यादातर एजुकेटर्स से कहते हैं कि भाई 12-13 साल के पेपर लास्ट ईयर के आपको ज़रूर देखना चाहिए, and those should be on your fingertips. I will also share about the different subtopics जो इस चैप्टर के हैं उनके क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगा some other day. तो थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि थ्योरी का पोर्शन और आगे मूव कर जाए because as you know this is one of the lengthiest chapters, काफ़ी बड़ा चैप्टर है तो that's why
आई एम गोइंग टू डिस्कस द थ्योरी राइट नाउ। तो यहाँ पे देखिए जस्ट आई वाज सेइंग कि PYQs तो सारे बच्चे करते हैं, जितने भी बच्चे अपीयर होंगे सारे PYQs जो सीरियस कैंडिडेट्स जरूर याद करते हैं। तो आपको करना क्या है, मेरा फोकस क्या है, जस्ट आई वांट ऑफन आई से टू माय स्टूडेंट्स कि बेटा आप PQ तैयार करो। PQ क्या होता है, आई जस्ट एक्सप्लेन इट एज द प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चंस। प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चंस का मतलब जो जिन सेंटेंसेस में एनसीईआरटी के लाइंस में या सेंटेंसेस में कुछ सब्सटेंस है, ऐसा लगता है पढ़ने के बाद आपको खुद एनसीईआरटी की बुक्स ये चीज़ आती है, बोलती है कि हाँ यहाँ पे कुछ मैटर है जो शायद एग्जाम में पूछ सकते हैं in any form, maybe like within a session or maybe like जैसे MCQs किसी भी फॉर्म में वो पूछ सकते हैं। तो ये एक देखो यहाँ पे क्या सेंटेंस है, ईच वन इज पोटेंशियल पॉलन, मतलब पोटेंशियल का मतलब जो फ्यूचर में पॉलन बनने वाला है, या दे आर गोइंग टू बी द माइक्रोस्पोर मदर सेल, या आप कह सकते हैं MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, यहाँ पे फिर डेफिनेशन नेक्स्ट लाइन में यू विल फाइंड आउट, दिस टाइम गोइंग टू हाईलाइट इट बाय रेड कलर। यहाँ डेफिनेशन है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। ये क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। तो ये क्या है, पहली चीज तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, डिवाइड कर दीजिए इसको दो पार्ट्स में, माइक्रोस्पोर प्लस यू विल फाइंड आउट द जेनेसिस मतलब ओरिजिन। ठीक है, कहाँ से इसका उद्भव हुआ, कहाँ से ओरिजिन हुआ। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर कहाँ से, फ्रॉम पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल, अगर मदर सेल है तो हमेशा याद रखना दे आर ऑलवेज डिप्लॉयड टू एन ओनली, हमेशा। ठीक है, और दे आर गोइंग टू पास थ्रू द मियोसिस। फिर अगेन वही मियोसिस, मियोसिस का मतलब क्या है, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ। तो देन दिस, अब रटने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ एनी मरीन, आप कीवर्ड्स याद रखो। अब कैसे याद करेंगे इसे, ये एक प्रोसेस है द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स। कहाँ से, फ्रॉम पॉलन मदर सेल से। ठीक है, एंड बाय विच प्रोसेस, मियोसिस, एंड दिस इज कॉल्ड एज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो प्रोसेस जिसमें माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, और कहाँ से बनेंगे, पॉलन मदर सेल से, और थ्रू विच द पर्टिकुलर स्टेप बाय द मियोसिस, उस प्रोसेस को हम बोल देंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अंडरस्टूड। इसी तरीके से पार्थिनोजेनेसिस आप पढ़ते हैं, तो या लाइक पार्थिनोकार्पिक फ्रूट दोज हु आर गोइंग टू डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इसी तरीके से जेनेसिस वर्ड हमेशा आएगा आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, आगे सक्सेसिव लाइंस में यू विल स्टडी द मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, आई थिंक टिल हियर इट इज क्लियर। ओके, now see the successive line, the microspores as they are formed are arranged in a cluster of four cells। cluster का मतलब होता है ग्रुप, जैसे जूनियर क्लास में पढ़ा होगा आपने, क्लस्टर ऑफ सेल्स इज गोइंग टू फॉर्म द टिश्यू। ठीक है, तो ये क्लस्टर ऑफ फोर सेल्स हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज टेट्राड। तो आई डोंट थिंक देयर इज नीड ऑफ द फर्दर एक्सप्लेनेशन। टेट्राड फॉर्म करेंगे एज द एंथर मैच्योर एंड डीहाइड्रेट। यहाँ पे एक टर्म आया है डीहाइड्रेट, मतलब दे आर गोइंग टू बी रिलीज्ड, या डाइसेंस होने वाला है, या बर्स्टिंग होने वाली है। तो माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट क्या करेंगे, अपने आप को डिसोसिएट कर लेंगे फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू द पॉलन ग्रेन्स, और ये एक दूसरे से डिसोसिएट करके एंड दे आर गोइंग टू डेवलप इनटू द पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, इसके पहले वाले शायद वीडियो मैंने आपको बताया था कि स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज नोन एज पॉलिनोलॉजी। ठीक है ना, देन फर्दर यू सी इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, या प्लूरल क्या हो जाएगा बेटा, माइक्रोस्पोरेंजियम, सिंगुलर माइक्रोस्पोरेंजियम, सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स आर पॉलन ग्रेन्स आर फाउंड। तो हजारों की तादाद में या क्वांटिटी में, संख्या में पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, कहाँ पे, इन माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है ना, क्लियर है, एंड दे आर रिलीज्ड आफ्टर डाइसेंस ऑफ एंथर, वो जो डाइसेंस के ब्रेक के बाद दे आर गोइंग टू बी रिलीज्ड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। After this, just you will find out there is another subheading pollen grains. तो फिर मैं repeat कर देता हूँ. Often I repeat the important the terms, keywords like study of pollen grains is known as pollinology. ठीक है ना? उसके बाद देखिए, the pollen grains represent the male gametophytes. They are going to represent the male gametophyte. As it is एक दफा पूछ रखा है क्वेश्चन, ये आया हुआ है नीट में कि pollen grains represent what. तो ये NCERT, this line of NCERT has been borrowed by NTA to frame the question. तो ये प्रीवियस ईयर में सेम लाइन पे
कभी कभी यू माइट हैव सीन, अगर आपने PYQ पढ़ रखा, मेनली वो बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी नीट दे रखा है, ड्रॉपर्स हैं या रिपीटर्स, जिसे साउथ इंडिया में रिपीटर्स बोलते हैं, तो दे माइट बी अवेयर दैट देयर इज द they are they pollen grains represent the male gametophytes, ठीक है। if you touch the open anthers of hibiscus, hibiscus क्या है, गुड़हल का फ्लावर, ठीक है ना, hibiscus rosa या sinensis या chinensis या any other flower, you will find a deposition of yellowish powdery the pollen grains। तो आपने जो प्रैक्टिकल किया होगा फ्लावर का, देखा होगा जब आप डस्टिंग करते हैं फ्लावर, तो एंथर से छोटे छोटे पार्टिकल्स मेनली वाइट शीट पे तो पॉलन से इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। तो पॉलन जर्मिनेशन आपका 12th का CBSE में पहला एक्सपेरिमेंट है, आई थिंक यू माइट हैव डन दोस हु हैव पास द 12th, ठीक है ना, या फिर जो भी अपीयर भी एग्जाम देने जा रहे हैं वो भी उन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करा होगा ये, ठीक है। स्प्रिंकल दीज ग्रेन्स ऑन ए ड्रॉप ऑफ वाटर टेकन ऑन ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर द ए माइक्रोस्कोप। तो अब ये कह रहे हैं कि अगर आप चाहें तो इसको कलेक्ट करके पानी के ड्रॉप में डाल के फिर यू कैन ऑब्जर्व, ठीक है। यू विल रियली अमेज्ड एट द वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर। किस चीज़ का आर्किटेक्चर भाई, यहाँ पे कौन सी इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर का मीन्स हियर क्या है कि द डिजाइनिंग, यू विल फाइंड आउट कि पॉलन ग्रेन्स एज जस्ट यू कैन विटनेस हियर, ये जो डायग्राम्स दे रखे हैं डिस्प्लेड हैं, इनमें देखो कि बिल्कुल अलग अलग डिज़ाइन के द पॉलन ग्रेन्स हैं। इसमें आउटर लेयर जो एग्जाइन होती है स्पोरोपोलिन की बनी होती है, और इनर लेयर इज कॉल्ड एज द व्हाट इंटाइन, ठीक है। तो देखो इनका शेप डिफरेंट कलर्स का है, अलग अलग जो टाइप के शेप, साइज एंड कलर्स के डिजाइन है, ठीक है ना। तो इसमें एक चीज जस्ट आई वुड लाइक टेल यू, यहाँ पे देखिए वर्ड लिखा हुआ है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स। तो थोड़ा सा बताता हूँ इसमें आपको, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ जो ये पिक्स यहाँ पे इन्होंने एनसीईआरटी में दे रखा है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किया था नल एंड रस्का ने। नल एंड रस्का, आई एम गोइंग टू राइट, शायद आपको पता याद हो, साइंटिस्ट का नाम था नल, टू साइंटिस्ट वेर देयर एंड रस्का इन्होंने 40s में 1940s के आसपास इन्होंने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मेजर डिफरेंस क्या है कि वो जो लैब्स होती हैं ज़्यादातर स्कूल की लैब्स, उसमें यू माइट हैव सीन ओनली कंपाउंड माइक्रोस्कोप या डिसेक्टिव माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन पावर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जो शुरू में 32 में डिस्कवर, कुछ बुक्स में 1932 लिखा हुआ है डिस्कवरी ऑफ द ईयर्स, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ईयर, कुछ बुक्स में 1940 भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आई हैव यूज द वर्ड लाइक 1940s में। तो 40s में जो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड हुआ, इसका मैग्निफिकेशन पावर था बेटा 2.5 to 3 लाख टाइम्स। मतलब एक डॉट मैं यहाँ बनाऊँ, अगर जैसे एक वाइट शीट पे एक छोटा सा डॉट बना दूँ मैं यहाँ, तो ये इतना बड़ा नज़र आएगा, लाइक जस्ट यू कैन सी कि जैसे 100 मीटर्स के ये मोबाइल या फोन टावर्स नज़र आ रहे हैं, तो इतना ज़्यादा। इसीलिए एक क्वेश्चन आया हुआ नीट में कि विच सेल ऑर्गेनेल was discovered only after discovery of electron microscope। इसका आंसर क्या होगा, राइबोसोम्स, because they are protein factories and 1932 या 40s के पहले nobody was knowing that there is existence of cell organelle ribosomes are nicknamed as the protein factories, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो ये they discovered null and रस्का, they discovered the, यहाँ पे के जो है ये म्यूट होता है या साइलेंट रहेगा, नल एंड रस्का, ठीक है, नेम ऑफ द साइंटिस्ट। इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया, तो आजकल तो 4 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जनरली कंसीडर किए जाते हैं। शुरुआत में ये 2 टाइप्स के थे, जिनको हम बोलते थे टेम एंड सेम। तो आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के 2 ट्विंस हैं, एक का नाम है टेम, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, टेम, टेम, ठीक है। और दूसरा ट्विन का दूसरा जो बच्चा इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का है उसका नाम होगा सेम। एक टेम हो गया, एक सेम। सेम इज फॉर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वन टेम इज फॉर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो ऐसे लाइट मोड में मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको कि दे आर जस्ट लाइक ट्विंस, मींस द टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये यहाँ पे जो वर्ड स्कैनिंग लिखा हुआ है ना, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो ये वन ऑफ द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। दूसरा इसका जो टाइप होगा वो टेम होता है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, राइट, इज इट ओके।
तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं माइक्रोग्राफ्स, ये वी हैव ऑब्जर्व्ड अंडर द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसका मैग्निफिकेशन पावर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें सोर्स ऑफ लाइट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये भी एक बार बहुत पहले नीट एग्जामिनेशन में पूछा था, ठीक है। तो जैसे आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लेंसेज यूज करते हैं, लाइट सोर्स रहता है, यहाँ पे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, BEAM, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज करते हैं, ठीक है। इसीलिए इनका मैग्निफिकेशन बहुत ज़्यादा है। आजकल तो बहुत मिलियन ट्रिलियन से भी ज़्यादा शायद यू कैन से द मैग्निफिकेशन पावर वाले मोस्ट सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स आर अवेलेबल। तो आप इसमें नेट पर देख सकते हैं कि जो लेटेस्ट सबसे सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसका मैग्निफिकेशन पावर कितना है। ये 40s में तो 1940s के आसपास इसका 2.5 to 3 लाख टाइम्स था, तो जाहिर है आज और ज़्यादा हो गया होगा, ठीक है। इज इट क्लियर? Now focus on this the link. You will be really amazed at the variety of architecture, sizes, shapes, colors, designs seen on the pollen grains from different species. तो आप देखिए ऐसा लगता है कि बिल्कुल किसी ने जैसे आर्किटेक्चर का जो आर्किटेक्ट होता है जो घर बनाता है आपका, सिविल इंजीनियर जो आपका नक्शा बना घर बनाता है, तो अलग अलग डिज़ाइन, हर बंगलो जो है अलग अलग तरीके का है, हर मकान अलग तरीके का है। इसी तरीके से दे आर ऑफ डिफरेंट शेप, साइज एंड द पैटर्न डिजाइन के बने हुए, ठीक है। राइट, यहाँ तक क्लियर है? देन यू सी द फर्स्ट डायग्राम, यहाँ पे देखिए द enlarged व्यू ऑफ द pollen grain tetrad, ये टेट्राड है, ठीक है। इसमें कभी कभी कुछ एडिशनल क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा आप जस्ट नोट कर लें कि लाइक और क्वेश्चंस का फॉर्म जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बाद में, तो फिर मैं उसको बता दूंगा आपको, ठीक है। राइट नाउ जस्ट ये आपको एडिशनल पॉइंट्स मैंने जैसे बताया था कि दैट विल टेक टाइम, तो जस्ट आई एम गोइंग टू राइट नाउ डिस्कस अबाउट द फर्दर वाइज, ठीक है। उसको मैं आपको एडिशनल पॉइंट्स में कवर करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए द pollen grains are generally spherical, measuring about 25 to 50 micrometers in diameter। एक्चुअली थोड़ी सी जो वीडियो जो है इसका वीडियो का साइज बड़ा हो जाता है, तो इसमें अपलोडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो आई एम नॉट वेरी मच familiar with all these techniques. Gradually, I am learning, and obviously, the day will come that I can just handle these situations. तो उसमें थोड़ा सा मैं बाद में आपको ये और बड़े वीडियोस आई वुड लाइक टू जस्ट अपलोड, ठीक है ना। तो इसी वजह से थोड़ा सा कम मैं स्मॉल साइज के वीडियो कोशिश कर रहा हूँ टू अपलोड। नेक्स्ट लाइन देखिए द pollen grains are generally spherical, राउंडिश स्ट्रक्चर होंगे, एंड यू विल फाइंड आउट इट हैज द टू प्रोमिनेंट लेयर्स। अब इसमें देखिए कि इनमें दो लेयर्ड होंगे जो pollen grains हैं। हार्ड आउटर लेयर, जो बाहर का हार्ड लेयर है, ये क्या कहलाएगा बेटा? एक्साइन। इसका केमिकल कंपोजिशन जो है वो दिस इज वेरी हार्ड इन नेचर, एंड ये कहलाता है स्पोरोपोलिन, एंड दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। तो इससे भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि स्पोरोपोलिन जो है मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है व्हिच इज फाउंड ऑन आउटर सरफेस ऑफ द एनी pollen grain। इसकी खास बात क्या है कि इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर्स एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कली। तो एसिड हो या बेस हो, कहीं भी ये सर्वाइव कर लेगा। तो इसका फायदा आगे क्या है कि फॉसिल्स के फॉर्म में pollen grains प्रिजर्व हो जाते हैं, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग चीज इसमें है कि नो एंजाइम, this is also important, no enzyme that degrades sporopollen is so far known। अभी हमें आज तक कोई ऐसा एंजाइम डिस्कवर नहीं हुआ जो इस स्पोरोपोलिन को डिग्रेड कर सके या इसको ब्रेक कर सके। एंड pollen grain एक्साइन हैज प्रोमिनेंट एपर्चर, एपर्चर पोर को बोलते हैं स्मॉल माइन्यूट पोर, जिसका नाम होता है द जर्म पोर। तो दिस इज द जर्म पोर व्हिच इज फाउंड, एंड जहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होगा तो इसका एक डायग्राम बना देता हूँ मैं, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जैसे इंटाइन जो इनर लेयर होती है, दिस इज मेड अप ऑफ पेक्टोसेल्लोज या सेल्लोज प्लस पेक्टिन। बाहर की लेयर बेटा ये जैसे मैंने बताया कि स्ट्रक्चर जैसा डिजाइन होता है वॉल्स पे, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर ये इंटाइन हो गया, ये एक्साइन है। लेकिन एक प्लेस ऐसा होता है जहाँ स्पोरोपोलिन इज मिसिंग, एब्सेंट होता है, इस एरिया को हम जर्म पोर बोलते हैं। यहाँ दिस इज द जर्म पोर, this area is known as the germ pore, ठीक है। This is the germ pore।
same thing they have mentioned here. The Exine exhibits a fascinating array of patterns and designs. तो जो Exine है वो शो करता है, exhibits प्रदर्शित करता है, दिखाता है, डिस्प्ले करता है, a fascinating charming array का मतलब होता है या array जैसे प्रोनाउंस लाइक आप करें ये एक ऑर्डर किस ऑर्डर में द पैटर्न्स एंड डिजाइंस को शो करेगा। क्वेश्चन इसमें पूछा है एनसीईआरटी में, जैसे ऑफन यू माइट हैव सीन कि एनसीईआरटी में पहले क्वेश्चन पूछता है फिर बाद में सक्सेसिव लाइंस में उसका डिस्क्रिप्शन होता है। इसीलिए कहता है ना कि एनसीईआरटी की बुक्स जो है दीज आर इन रिटन इन फिलोसफिकल मैनर, तो आपको जितनी दफ़ा पढ़ोगे जितनी बार पढ़ोगे आप उसको नई मीनिंग आएगी, इसलिए बार बार यू हैव टू स्टडी एंड यू विल गेट द न्यू डायमेंशन ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है ना, हर बार नया नए तरीके से आप उसको सोचेंगे। तो डिस्कस कर लेते हैं ये क्वेश्चन क्या है। आई एम गोइंग टू हाईलाइट दिस क्वेश्चन एज हाउ डू यू थिंक द एग्जाइन शुड बी हार्ड। तो इसका फायदा क्या है, एग्जाइन फायदा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्को। तो दो क्वेश्चन है, सॉरी व्हाई द क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू यू थिंक द एग्जाइन शुड बी हार्ड। तो एग्जाइन इसलिए हार्ड है कि स्पोरोपोलिन जैसा केमिकल से बना हुआ सब्सटेंस बाहर की तरफ होता है एंड जर्मपोर का फंक्शन क्या है, जर्मिनेशन में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट लेयर जो है दैट इज द पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड एज द इंटाइन। जो इनर लेयर है जस्ट आई हैव डाउन दिस लेयर इज going to be called as the intine। ये inner layer जो है ये intine है, this is the intine inner layer, it is thin and continuous। तो ये लेयर क्या है, thin है, पतली है, continuous layer made up of cellulose and pectin, या कभी कभी इसको पेक्टोसेलुलोज भी कलेक्टिवली बोल देते हैं। ठीक है, पेक्टोसेलुलोज। the cytoplasm the pollen grain is surrounded by plasma membrane। ठीक है, when the pollen grain is mature it contains two cells। तो जब मेच्योरिटी के टाइम पे दो सेल्स आपको नजर आएंगे, तो एक वेजिटेटिव सेल, इसमें खास बात क्या है कि साइज इसका बेटा बिगर है, बड़ा साइज होगा इन कंपैरिजन टू जनरेटिव सेल जो छोटा है, और ये एसिमेट्रिकल न्यूक्लियस होगा, मतलब न्यूक्लियस इसका टेढ़ा मेढ़ा इरेगुलरली शेप कह सकते हैं आप, इरेगुलरली शेप न्यूक्लियस होगा। लेकिन जो जनरेटिव सेल है इसका स्पिंडल शेप, यहाँ पे देखो वर्ड आई एम जस्ट गोइंग टू हाईलाइट वेजिट, पहले जस्ट देख लीजिए आप कि टू सेल्स आर देयर, वेजिटेटिव सेल इज बिगर, पहली चीज तो ये बिगर है, एबंडेंट फूड रिजर्व रहता है एंड लार्ज इरेगुलरली शेप्ड, ये फीचर्स पूछे गए हैं इरेगुलरली शेप्ड। अब जिनमें ज्यादा फीचर्स रहते हैं या कंपैरिजन लाइक क्वेश्चन अगर बनाना चाहे एग्जामिनर तो क्या करता है, मैच वगैरह या कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस में मैच टाइप का ऑप्शन दे देगा आपको, मैच करिए आप कि वेजिटेटिव सेल साइज छोटा है, बड़ा है, या फिर उनका न्यूक्लियस का शेप कैसा है, तो ये आपको माइंडली ऑब्जर्व करके और लर्न करना है। इसी तरह जनरेटिव सेल में देखिए स्मॉल है, और ये फर्क किससे, जो वेजिटेटिव सेल बिगर था ये फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म एंड इट इज स्पिंडल शेप, जैसे बोट शेप होती है बोट, इसमें देखिए जैसे लाइक आगे पतला पीछे भी पतला और इस तरीके से बीच में लाइक ये, तो ये लाइक स्पिंडल शेप, ये डायग्राम इस लाइक दिस। तो जो जनरेटिव सेल है इसका शेप स्पिंडल शेप है, ये भी पिक्यूलियरिटी है, सेलिएंट फीचर है, यू शुड नो। ठीक है, तो हो सकता है कि मैच करने के पूछ बना दे क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, there is a one the data is there in over 60% of angiosperms pollen grains are shed at two cell stage। तो 60% जो ज़्यादातर जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें टू सेल स्टेज पे pollen grains शेड हो जाते हैं, ये गिरते हैं, डायसिस होता है। ठीक है, द जनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली। अब यहाँ देखिए माइटोटिकली डिवाइड कर रही है, इसका मतलब जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो रिड्यूस होगा या सेम रहेगा, व्हाट इज योर आंसर, क्योंकि माइटोसिस हो रहा है, माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। ठीक है, तो यहाँ पे सेम रहेगा एंड गिव राइज टू टू मेल गैमेट्स, और ये डिवाइड होकर जनरेटिव सेल्स क्या बनाएंगे बेटा, टू मेल गैमेट्स बनाएंगे एंड द pollen grains are going to shed at the three cell shed stage, the three sorry they are going to shed at three cell stage। ठीक है राइट, तो at this stage they are going to shed। ठीक है, so next because I'm not going to make it bigger, next वीडियो में okay, let me continue. I think it is still smaller. So
I'm going to discuss till here, and in next video I will discuss the further about the next paragraph. Thank you very much.